اب ہم دیکھتے ہیں اپنے دوسرا مسئلہ, اور ہمارا دوسرا مسئلہ کیا ہے جناب؟ زندگی کا, انسان کی زندگی کا, انسان کا بنیادی دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ گناہ. جب میں انسان کی بات کر رہا ہوں تو میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کو خدا نے تخلیق کیا تھا, جو آدم کی شبیہ پر نہیں بلکہ خدا کی شبیہ پہ تھا. یہ اس کے مسائل کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جو آدم کی شبیہ پہ جو جسموں میں موجود ہیں, آپ آلریڈی ابلیس کے قبضہ میں ہیں. یہ مسئلے آپ کے نہیں ہیں, یہ ان کے مسئلے ہیں جو خدا کی روح سے پیدا ہوتے ہیں یا خدا کی روح سے پیدا ہونا چاہتے ہیں, یا وہ جو گمراہی کی وجہ سے خدا سے دور ہیں. آج ہم ان کو آزاد کرنے کو ہیں, اور ہمارے وسیلہ سے کئی روحیں بچ جائیں گی. ہم اب کلام میں سے چیک کرتے ہیں گناہ کیا ہے. سب سے پہلے جب آدم نے گناہ کیا تو کیا تھا؟ ذرا پڑھیے گا پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 6 آیت. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا, اور اپنے شوہر کو بھی دیا, اس نے کھایا. آمین. چلیں جی, یہاں پہ پھر دوبارہ وہی سرکل کر لیں پہلے کیا تھا. اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا, اور اس کے نیچے ایرو بنا کے لکھ دیں گناہ. نافرمانی آتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی, اگلی آیت پہ جاتے ہیں. گنتی 15 باب 31 آیت. کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا, وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا, اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا. آمین. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا. انڈرلائن کر لیں اس کو. خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا. گناہ کیا ہے؟ خدا کے کلام سے حقارت کرنا اور اس کے حکم کو توڑنا, یہ گناہ ہے. ہمارے حساب سے گناہ کیا ہے جی؟ چوری, جھوٹ اور یہ فلاں 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 ڈھینگا, رائٹ. لیکن خدا کی نظر میں اس کے حکم کی عدولی گناہ ہے. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں اگلا حوالہ, یعقوب کا خط 1 باب اس کی 15 آیت کیا کہتی ہے؟ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آمین. ابھی ہم نے جو 3 باب کی 6 آیت میں دیکھا, پیدائش 3 باب کی 6 آیت میں, ذرا ایک بار پھر واپس اوپر جائیے نا. عورت نے جو دیکھا اور کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں خوشنما معلوم ہوتا ہے, تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ خواہش ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ خواہش ہے. اور جب خواہش نے جنم لیا تو کیا ہوا؟ حاملہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ پیدا ہوا. جیسے ہی خواہش حاملہ ہو گئی, عورت نے اس پھل کو لیا اور کھایا, اور گناہ ہو گیا. اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. خدا سے جدا ہو کر آپ زندگی حاصل نہیں کر سکتے. اگلی آیت پڑھی جلدی, 1 یوحنا 3 اور 4 آیت. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. آمین. نہ چوری, نہ مکاری, نہ اور کوئی دیگر چیزیں. یہ انسان جو جسم میں حرکتیں کرتا ہے, یہ بیسیکلی آلریڈی خدا سے دور ہے. جو خدا کے ساتھ ہے اس کے لیے چیزیں کچھ اور ہیں. اور وہاں گناہ کیا گنا جاتا ہے؟ وہاں گناہ گنا جاتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. شرع کا مطلب شریعت, کمانڈمنٹس, لا, اس کی مخالفت کرتا ہے. اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. شریعت کے کتنے احکام ہیں ہمارے لیے؟ 'Praise the Lord'. 613 احکام ہیں, 10 حکم نہیں ہیں. 10 حکم 613 کا مفہوم ہے. 613 احکام ہے, اور کلام کہتا ہے کہ اگر تو ایک کا بھی گناہ گار ہوا تو تو پوری شریعت کا گناہ گار ہے. ہمارے لیے شریعت کے کتنے احکام ہیں؟ 613.
2, परफेक्ट आंसर। कितने जी? जिक्र किया था मैंने इनका। पहला क्या है जी? और इसी तरह, तो ये एक हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म, पहले खुदा से फिर पड़ोसी से। दूसरा हुक्म क्या है जी? ग्रेट कमीशन, इरशाद आज़म उसको कहते हैं। अगर वो नहीं करते तो हम आधी शरीयत को पूरा कर रहे हैं, और आधी शरीयत वाले बादशाही में दाखिल होंगे या नहीं? इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि आपको पूरी शरीयत समझा दी जाए, ताकि आप, क्या लिखा है, एहतियात से अमल कर कर खूब इकबालमंद हों और खूब कामयाब हों। हमारी शरीयत 10 अहकाम नहीं है, हमारी शरीयत 613 हुक्म नहीं है, वो यीशु मसीह ने सलीब पर पूरा करके कहा तमाम हुआ। हमारी शरीयत ये है कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर और पड़ोसी से मोहब्बत कर और पूरी दुनिया मेरे नाम की बुनियाद पर। हालेलुया। और गुनाह यहां पर क्या लिखा है? शरा की मुखालफत। अगर आप शरीयत नहीं पूरी कर रहे हैं तो आप मुखालफत कर रहे हैं, और जो मुखालफत कर रहा है वो गुनाह में है, और जो गुनाह में है वो खुदा के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं। हम तो रोजे और प्रेयर नाइट्स और पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं, लेकिन जो करने का काम है वो तो कर ही नहीं रहे। और करने का काम बेसिकली हम सब कोशिश कर रहे हैं करने की। मुझे पता है कई खादमों के ज़हन में कि हम तो करते हैं, ये कर रहे हैं ना, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, यीशु प्रेजेंट कर रहे हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है? कोई और ही तरह की खुशखबरी सुनाते हैं, उनको अपने चर्च में ले आते हैं और फिर उनको सारी जिंदगी वहीं घुमाते रहते हैं। तो क्या हमने शरीयत पूरी की? क्योंकि जो रूह से पैदा होता है वो और पड़ोसी से मोहब्बत रखता है, और फिर जब वो पड़ोसी से मोहब्बत रखता है तो वो अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखता है। वो तो हमने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं, ये इसी तरह है। मेरी एक 11 साल की बेटी है, वो कहती है पापा आज मैं आपके लिए खाना पकाना चाहती हूँ, और मैं खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ जा जाके खाना बना। मुझे पता है वो किचन में गंद मचाएगी, और जब वो खाना बनाएगी शायद वो इतना मजेदार नहीं बनेगा जितना मेरे वाइफ अच्छा बनाती है, राइट? उसके बाद वो जब लेकर आती है तो असूलन मुझे खाने के बाद उसको क्या कहना चाहिए? वाव करेंगे तो मैं झूठ बोलूंगा, और ये हम कलीसिया के साथ कर रहे हैं, और यही इब्लीस चाहता है। यही इब्लीस चाहता है। मुझे उसको बताना चाहिए, बेटे आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन सो मच फॉर मी, आपने मेरे लिए बहुत किया, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा सीखना बाकी है। आप मामा से सीखो ना, वो नाराज भी नहीं होगी, वो इनकरेज भी होगी। उसने काम वही किया जो उसकी मां करती है, यही है ना? काम वही किया जो उसकी मां करती है, लेकिन काम जो उसकी मां करती है वो ठीक काम होता है, वो परफेक्ट काम है। हमें परफेक्ट काम करना है, हमें गंद नहीं मचाना कि जिधर स्वाद भी ना आवे, क्योंकि खुदा हमसे नहीं कहेगा वाओ बहुत अच्छा किया तूने, सारी जिंदगी तू रूहें बचाता रहा, वेरी गुड। वो नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरी तुझसे कभी वाकफियत ना थी। कलाम के ऐन मुताबिक जिंदगी को गुजारना जरूर है। लीडरशिप से बात करने का मकसद ही ये है, अगर लीडर्स ये बात समझ आएंगे, मैं आम कलीसिया से कहूंगा उनको नहीं आएंगी ये बातें समझ में, वो कलाम नहीं पढ़ते, क्योंकि आप लोग कलाम से ऑलरेडी वाबस्ता हैं, आप पढ़ते हैं, आपको पता है इनके अंदर आयात क्या लिखी गई हैं, इनके अंदर मफहूम किन किन चीजों के बारे में लिखे गए हैं। जो बात मैं कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है, इसीलिए आप लोगों को यहां जमा किया जाता है कि जब आप अपनी कलीसियाओं में जाएं तो उनकी अकल के मुताबिक उनको यहां से समझाना शुरू करें, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द मुझ जैसे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पैदा होंगे। फिर मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो ये भी मेरा घर ही होगा, जब आप मेरे पास आएंगे तो वो भी मेरा घर होगा, जब हम अमेरिका जाएंगे तो वहां जो शागिर्द है वो मेरा घर होंगे, जब वो यहां आएंगे तो ये उनका घर होगा। हम बड़ी जल्दी से फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं, चाहे वो बिद्दत ही साथ क्यों ना लाए हों। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब बिद्दत फैल जाती तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ किसने सिखाई है?
सीखा था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने, इल्जाम तराशी अच्छा काम नहीं है। अगली आयत, पहला यूहन्ना 3 बाब की 8वीं आयत पढ़िएगा। जो शख्स गुनाह करता है वह इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। आमीन। आगे चले जाइए, पढ़ चुके हम इसको। अब हम देखते हैं कि गुनाह के कंसिक्वेंसेस, उसके नताइज क्या हैं, गुनाह करने से हमारी जिंदगियों पे क्या असर होता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या चीजें हैं, जरा पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं अपनी कलीसिया को, मेरा ख्याल है तुसी कलाम नहीं पढ़ते इसलिए बीमारियां ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ, ਦਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਲਈ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ नहीं। अब देखते हैं कि कलाम क्या कहता है। पैदाइश 2 बाब 17वीं आयत। लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। नेकोबद की पहचान से पता क्यों खुदा ने रोका था उसको, आदम को, ताकि वो उस दूसरी कुव्वत से बचा रहे जो बाग अदन के बाहर है। अगर उसको नेकुबत की पहचान होगी तो उसको बाहर जाना ही होगा। गुनाह की सजा मौत है, और मौत का मतलब है खुदा से जुदा होना, क्योंकि खुदा जिंदगी है। तो कॉन्सिक्वेंसेस, गुनाह का सबसे पहला जो इसकी सजा है उसकी क्या है, नतीजा क्या है, मौत। आगे पढ़िए। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया कि जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। आमीन। गुनाह और कसूरों और गुनाहों के सबब से आप क्या हैं, मुर्दा हैं, आप ऑलरेडी डेड है। आप में से कितने लोग हैं जो ज़ॉम्बी, सुना है ज़ॉम्बी? हाथ खड़ा करें, किस किसने सुना है, जरा मैं देखूं। बहुत से हमारे भाई हैं जिनको, बहनें हैं जिनको नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ज़ॉम्बी पता कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। उनका काम क्या होता है, कभी आपने फिल्में देखी है ना, ये हकीकत में नहीं है, ये फिल्मों में देखा जाता है। उनका काम क्या होता है, वो जाते हैं और वो काटते हैं, और जिसको वो काटते हैं वो भी उन्हीं जैसा हो जाता है। तो हम शागिर्द, जब हमारी रूह एक रूह से मिलती है, वो रूह जिंदा हो जाती है। जब हम उसको हाथ लगाते हैं वो उठ खड़ा होता है। ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर है या हम ज्यादा ताकतवर है? हम कंटेजियस हैं। कंटेजियस का मतलब है लगने वाली बीमारी। हम क्या हैं? लगने वाली बीमारी। हम जिसको लग जाए वो भी हम जैसा हो जाता है। आमीन। गुनाह का नतीजा मौत है। गुनाह का नतीजा बदरू में फंसना नहीं है। गुनाह का नतीजा बीमार होना नहीं है। गुनाह का नतीजा गुर्बत नहीं है, मौत है। आगे पढ़िए। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। आमीन। अच्छा, पहले जो है ना, पैदाइश 2 बाब 17वीं आयत हमने अभी पढ़ी थी ना, वहां पे जो लफ्ज लिखा है तू मरा, मरा को जरा सर्कल कर लें ताकि सबको याद रहे कि यहाँ बात क्या हुई थी। अगली आयत में हमने देखा कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, मुर्दा को सर्कल कर लें। आगे चले जाएं, अभी जो हमने आयत पढ़ी है गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत को सर्कल कर लें। अगली आयत पे चले जाइए, 3:23। इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। यहां यह आयत क्या बता रही है कि मौत क्या चीज है? मौत का मतलब है खुदा के जलाल से महरूम होना। अगर आपके अंदर खुदा का जलाल नहीं है तो आपके अंदर जिंदगी नहीं है। पैर के तलवे से लेके सर की चांदी तक आप क्या हैं? बीमार हैं। खुदा के जलाल से महरूम होने का मतलब क्या है जनाब? मौत। क्योंकि हर वो शख्स जो उसके जलाल में है, जब आदम और हवा जब बागे अदन थे तो वो कहां थे? खुदा की हजूरी में, उसके जलाल में थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनकी जिंदगियों के सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं।
ईसाया 59 बाप उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रिपोश किया, ऐसा कि नहीं सुनता। आमीन। हम दुआएं करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। किन चीजों के लिए दुआएं करते हैं? हमारी दुआओं की लिस्ट क्या है जी? बताएं। बीमारियों से शिफा, जरूरियात की भी पूरे होने के लिए दुआ करते हैं, और यही सारी चीजें आगे चलती हैं, राइट? और नाम किसका लेते हैं? किसके नाम में दुआ मांगते हैं? अच्छा, अब वो शख्स जो दरगाह पे गया है या वो मसल्ले पे बैठा है, वो क्या चीज मांग रहा है खुदा से? यही सारी चीजें मांग रहा है। नाम फर्क है सिर्फ उसके खुदा का। तो वो ये जितनी भी चीजें अभी हमने लिस्ट बताई, ये कहां की हैं? आसमान की या जहान की? तो हम कहां के खुदा से दुआ मांग रहे हैं? जहान की चीजें मांग रहे हैं, और हम आसमान के खुदा से कह रहे हैं कि हमें दे। जबकि मत्ती 6 बाप कहता है, क्या तुम्हारा बाप नहीं जानता कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है? दुआएं रुबानी आप जब पढ़ते हैं, वहां कहां यीशु मसीह ने सिखाया कि आप ये वाली दुआएं करें? अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही जैसी आसमान पर है जमीन पर भी हो। ऐसी है ना? आगे क्या है? जरा पढ़िए, सारे पढ़िए, भूल गए शायद। शीजक रुकिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा की मर्जी आसमान पर क्या है जी? कि उसके बेटे के नाम के वसीला से तुम जिंदगी पाओ। लेकिन जब हम वो चीजें मांगते ही नहीं हैं, रूह से नावाकिफ हैं, रूहानी चीजों की कभी तलाश ही नहीं की। अच्छा, फिर अब इस पे मेरे साथ अक्सर बहस किया लोगों ने बाकायदा आकर, सर जी हमारे पास तो पाक रूह भी, हमारे पास तो नबूवत भी है, हमारे पास तो तर्जुमा भी है। वेरी गुड, लेकिन कहां लिखा कि ये चीजें आपकी निजात का बाइस बनेंगी? जब यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे नाम से मौजज़े करोगे और बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन मैं तुमसे साफ कह दूंगा, तो वो यही लोग होंगे जो गैर जुबानें भी बोल रहे होंगे और सारी चीजें कर रहे होंगे। मैं पाक रूह के खिलाफ नहीं हूं, ना उसके मसा के खिलाफ हूं, लेकिन वैसा जैसा कलाम के मुताबिक है वैसा होना चाहिए। मैं बपतिस्मे के खिलाफ नहीं हूं। कल एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल था। हमें लेना चाहिए, लेकिन वही बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने लिया। जैसे ही यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, तो वो जो 30 साल की जिंदगी थी उसने छोड़ दी, और बपतिस्मा लेते ही रूह में पैदा हुआ, और रूह उसको बयाबान में ले गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद से सिर्फ मुनादी करता रहा। वो लौट के घर गया। ये काम होना जरूर है। ये आसमान का काम है, उसके बादशाही की मुनादी करना। जैसे तेरी बादशाही जमीन पर क्या है, वो जैसे तेरी मर्जी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। क्या मतलब इस बात का? जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी वो मुझे आज दे। हमारे पादरी साहबान अक्सर ये बयान करते हैं, जी ये रोज की रोटी लिखी है, ये आपकी दुनियावी चीजों के बारे में बात। इसमें बाकायदा डिबेट में गया हूं प्रोफेसर्स के साथ। कभी आप इसकी ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ के देखिए। जब बाकी सारी बातें आसमानी है, तो बीच में दुनियावी चीज कैसे आ सकती है? आगे क्या कहता है जी? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बुराई कौन है जनाब? इब्लीस है। उसकी कुव्वतें आसमानों में हैं। यही पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आसमान की कुव्वतें। तो जब बाकी सारी चीजें आसमानी हैं, तो ये बीच में जो क्लॉज है ना, ये भी आसमानी है, जो कहता है ना जिंदगी की रोटी मैं हूं, वो तू आज मुझे दे। ये दुआ यीशु मसीह ने सिखाई है हमें।
कौन कहता है? यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया है? लिखा है उसने अपने शागिर्दों, बोले शागिर्दों, चाइनीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शागिर्दों के लिए यह दुआ है, चर्च मेंबर्स के लिए भी नहीं है। हालेलुया। चाइनीज क्या कह रहा है, कोरियन क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, आपको उसकी परवाह होने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा है उसकी फिक्र करने की जरूरत है। लिखा है बल्कि तुम्हारी बदकारी, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके गुनाह के। क्या लिखा है? तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, जो आपका तीसरा मसला थोड़ी देर में हम डिस्कस करने को है। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि नहीं सुनता। अगली आयत पढ़िए भाई। अब जो गुनाह के दरमियान हमारी जिंदगी है उसका हाल क्या है, जरा वो देखें। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। आमीन आमीन। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी और उसके दिल के तस्वर और ख्याल, हर वो ख्याल जो आप मसीह से बाहर देख रहे हैं वो क्या है? बुरे हैं। हर वो दिल का तस्वर, चाहे वो खुदा से प्यार करने का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मसीह से बाहर हैं तो वो क्या है? ख्याल बुरा है, उसमें कुछ नेकी नहीं। कहता मुझे तुम्हारे ज़बियों की कुर्बानी से नफरत है, तुम्हारी बातों से मैं तंग आ चुका हूं। यशायाह नबी पहला बाब है ना, पढ़ते हैं ना, बहुत सख्त है वो। कभी आप उसको पढ़ के तो देखें, मेरे आंसू निकल आते हैं उस पर कि खुदा किस कदर गुनाहगारों को सजा देने को है। और आंसू इसलिए निकलते हैं कि काश कि कोई एक जिसको मैं बचा पाऊं उस अजाब से जो खुदा की तरफ से है। कभी आप रोते हैं अपने पड़ोसी की हालत देख के, जो रोज हर जुम्मे तैयार होकर मस्जिद की तरफ जाता है? अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे कि हमें मुनादी क्या करनी है, कैसे करनी है। खुशखबरी हमने सीख ली है, राइट? उस खुशखबरी का मतलब क्या? यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। अब आप किसी भाई के पास चलें, मुसलमान के पास चलें, या हिंदू के पास, या बुद्धिस्ट के पास, या किसी के पास जाएं और कहें ओ भाई एक मिनट मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। वो कहेगा क्या जी? हाँ जी फरमाइए। वो समझेगा शायद बड़ी लॉटरी को लग गई है। आप कहेंगे यीशु ही मसीह है? उधर आप चुप, इधर ये परेशान। अब यीशु ही मसीह है, इसको साबित क्या करना है, कैसे करना है, उसको बताना क्या है, इससे आगे थोड़ी देर में हम सीखेंगे। नहीं, मेरा ख्याल आज नहीं, अब कल सीख पाएंगे। मैं भी आपको वहां तक लेकर जाऊंगा कि वर्ल्ड इवेंजलिज्म है क्या। वर्ल्ड इवेंजलिज्म, ये ऐसे काम, वो वैसे काम। ओ बड़ी खिदमत है सर जी, ना दी किसकी? हम जब बाइबल पढ़ते हैं और रसूलों की खिदमत को पढ़ते हैं, लेकिन नाम हम किसका देखते हैं? यीशु मसीह का। हम शागिर्दों को नहीं देखते। ये करंथियों के कलीसिया की हालत थी। पहले करंथी में पढ़ा है ना आपने, शायद पहला बाब ही है। क्या मसीह बट गया? क्या तुमने मेरे वसीला से निजात पाई पौलुस के नाम से? नहीं, हम कुछ और ही मुनादी कर रहे हैं, किसी और ही तरह की कलीसिया के पाबंद हो गए हैं। अगली आयत पढ़िएगा कि गुनाह में हमारी जिंदगी का क्या हाल है। क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानित मेरे लिए निहायत भारी है। आमीन। निहायत, मेरे लिए निहायत भारी है, इसको अंडरलाइन कर लें। ऊपर मेरी बदी को सर्कल करें, मेरी बदी को सर्कल करें
اور میرے لیے نہایت بھاری ہے. اس کو انڈرلائن کر لیں. نہایت بھاری کا مطلب کیا ہے جی؟ جس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. جس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. تب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نہایت, جہاں شدت ہوتی ہے. آج تو نہایت ہی گرم موسم ہے, آج تو نہایت ہی ٹھنڈ ہے, مطلب انبیئربل, جب برداشت نہیں ہوتا. پولو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ زبور نویس کون ہے؟ یہ زبور 38 کس نے لکھا جی؟ داؤد ہے. کیونکہ میری بدی, داؤد نبی کیا کہہ رہا ہے, بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی, پیر کے تلوے سے لے کے سر کی چاندی تک گزر گئی, اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. گناہ بہت بھاری ہے. ہمیں اس کا وزن محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم خدا سے وابستہ نہیں ہیں. خدا کو گناہ سے نفرت ہے. خدا کو گناہ سے کیا ہے؟ لیکن ہمیں تو اچھا لگتا ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں, رائٹ؟ اس لیے کیونکہ ہمارا خدا کوئی اور ہے. ہم پرواہ بھی نہیں کرتے, چھوٹے موٹے جھوٹ تو ایسے ہی بول دیتے ہیں, کیونکہ جھوٹا ہے اور اپنی ہی سی کہتا ہے, تو ہم نارمل رہتے ہیں. اگلی آیت زبور 40 اس کی 12ویں آیت پڑھیے گا. کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے, میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے, ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے, سو میرا جی چھوٹ گیا. آمین. کتنی بے بسی کی حالت ہے یہ. اس آیت کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. گناہ گار کی حالت کتنی بے بس ہے. یہاں لکھا ہے کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. گھر میں فاقہ ہے تو برائی ہے, گناہ ہے تو برائی ہے, مطلب بیماری ہے تو برائی ہے, بچوں کی فیس ادا نہیں کی جا رہی تو برائی ہے, نوکری اچھی نہیں لگ رہی تو برائی ہے, کئی خواہشیں دل کی جو پوری نہیں ہو رہی تو برائی ہے. گھیر لیا ہے انہوں نے ہمیں. میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے, ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے. یاد ہے آپ کو, آپ نے کبھی کاؤنٹنگ کی کہ آپ نے بچپن سے لے کے آج تک کتنے گناہ کیے؟ لا تعداد. میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہے. اور جنہوں نے سر تے بال نہیں, وہ کہنے بھائی سے ایسے ٹھیک ہے. میں کہا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, سیریس ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ سو میرا جی چھوٹ گیا. میرا جی چھوٹنے کا مطلب اب میں نجات کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتا, مجھ میں ہمت ہی نہیں, کیونکہ میں سر اٹھا کے اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا. جب نوح کی کشتی بنائی گئی تو کھڑکیاں کہاں قائم کی گئی؟ اوپر والے حصے میں. کیوں اوپر والے حصے میں قائم تھی؟ نگاہ کرے اوپر جی. کیوں خدا کی طرف کرے جی؟ پریز دا لارڈ. یہ شاگرد ہیں, وہ اپنے دائیں بائیں کی جن آفتوں نے ان کو گھیر رکھا تھا ان کی طرف نہ دیکھ پائیں, وہ صرف آسمان کی طرف, خدا کی طرف دیکھیں تو جیتے رہیں گے. اگر باہر دیکھ لیتے, لوگوں کا چیخنا, چگاڑنا, مرنا, ڈوبنا, ان کا دل دہل جاتا, شاید پھٹ جاتا اور وہ مر جاتے. وہ عذاب جو خدا نے بھیجا اس کو نہ دیکھ سکے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. پترس کی مثال پانی پر چلتا ہے. وہ ہم میں سے کوئی چل سکتا ہے؟ پترس چل سکتا تھا؟ نہیں. کیسے چلا تھا وہ؟ جب یسوع پہ نگاہیں لگائی, جب اس کی نگاہ اوپر تھی. وہ اپنے گول کو فوکس کر رہا تھا, تب تک وہ چل رہا تھا, اور جیسے ہی وہ اپنے گول سے ہٹا,
होए मेरा दिल, और वो डूबने लगा। और क्या लिखा है, उसी वक्त यीशु ने उसका हाथ थाम लिया और उसको फिर उठा खड़ा किया और कश्ती की तरफ ले गया। हम शागिर्द ऐसे हैं, अगर कभी हमारी निगाह दाएं बाएं चली भी जाएगी तो यीशु आकर हमें फिर थाम लेगा, फिर उठा खड़ा करेगा और फिर हमें सीधा अपनी राह पर ले चलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस है। मैं अक्सर कहता हूं, बार बार ही कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है। हमारा चर्च आना जाना इबादतें, ये मजाक नहीं है, ये जिंदगी और मौत का खेल है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि आप सबको यहां जमा करूं और एक और तरह की खुशखबरी सुना के और पता नहीं क्या कुछ नई तरीके कार सिखा के और चला जाऊं। वाह जी वाह, पादरी साहब कोरिया तो ऐसा नवा तरीका सिखा के गए नहीं, ये तो कभी काम था ही नहीं शागिर्दों का या लीडरों का। तरीका एक ही है, जिसने मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में पैदा हो गया है, वो दुनिया के एतबार से मर गया और रूह के एतबार से जिंदा हो गया, और उसने अपना कफन अपने सर पे बांध दिया क्योंकि उसने अपनी सलीब उठा ली है। अगर आपको लगता है कि आप सलीब नहीं उठा सकते तो आप निकल जाएं इस बिजनेस से, ये आपका काम नहीं है। बहुत सजा है, बहुत सख्त सजा है। ज़बूर 51 और उसकी तीसरी आयत पढ़ी है। क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। आगे पढ़िए। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। इसको अंडरलाइन कर लें। तुम गुनाह में पैदा हुए, उसका हवाला हम सिर्फ बोल देते हैं, हमें याद नहीं होता। ये याद रखिए, ज़बूर 51 की कहानी है कि मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। 3 साल पहले मुझे यीशु मसीह मिला। 37 साल जिंदगी के मैंने बर्बाद किए। मुझ पर किसी और खुदा की मोहर थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उसने मेरे बंधन तोड़ दिए। और वो गुनाह की हालत जिसमें मैं पैदा था, आज मैं उसमें नहीं हूँ। आज मैं अपने आप को रास्तबाज कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी रास्तबाजी मेरे नेक कामों से, मेरे सरमन सुना, ये सेमिनार करने से, कॉन्फ्रेंस करने से नहीं है, खिदमत से नहीं है। मेरी रास्तबाजी मसीह से है, वो मेरी रास्तबाजी है। मेरे कामों से कुछ नहीं होगा। आगे क्या लिखा है जी? यशायाह 64:6 बाब जी। और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिद हमको उड़ा ले जाती है। आमीन। गुनाह में हमारी हालत ऐसी है। गुनाह में हमारी हालत कैसी है? लिखा है, और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी, मैं नहीं कह रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले कहा है, यहां लिखा है, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है, और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिद हमको उड़ा ले जाती है। हमारे चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे होते हैं। यह है हमारी जिंदगी गुनाह के दरमियान। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वादा किया हुआ बर्रा, वो मसीह पैदा हुआ है, और उसने हमारा गुनाह का मसला हल किया है। और अब हम जानते हैं कि वो कौन है। आइए पढ़ते हैं अगला हवाला। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारे के लिए उसे तुमको दिया है कि इससे तुम्हारी जानों के कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। आमीन। अभी जब हम गुनाह की हालत में ही हैं, अभी जब हम तड़प ही रहे हैं उस मछली की तरह जो पानी से निकाल दी गई है, अभी हम जब सूख ही रहे हैं उस दरख्त की तरह जो अपने सिस्टम से बाहर है, अभी जब हम पल पल मौत के हाथों के अंदर और दबते चले जा रहे हैं, उस हालत के दरमियान हमारे लिए कफ़ारे का बंदोबस्त किया गया है। इंसान की जान खून में है, और यहां पर क्या लिखा है? खून, क्या जिक्र है यहां पे? खून में है,
اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے تاکہ تمہاری جان سلامت رہے. تاکہ تمہاری جان کیا رہے؟ سلامت رہے. سلامت رہے. مسیح ہمارے گناہ کا سولوشن ہے. وہ ہمیں بدروہیں نکالنے کے کام نہیں آتا, وہ ہمیں تعویذ بنانے کے کام نہیں آتا, وہ ہماری بیماریوں کو شفا دینے کے کام نہیں آتا. جب مسیح آپ میں ہوگا تو بیماریاں آپ سے بھاگیں گی. آپ کو تبھی تنگ کریں گی کہ جب خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنا ہوگا, کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر وہ آپ کے کیا کہتا ہے, تیرے دہنے تیرے بائیں اور تیرے دائیں کتنے گر جائیں گے جی, رائٹ. موت کی وادی میں سے تیرا گزر ہوگا, وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی, نہ ہو ہی نہیں سکتا. پڑھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہالےلویا, لیکن اس سے تو کبھی واقفیت ہوئی ہی نہیں جس کے بارے میں ذکر ہے. اگلی آیت پڑھیے. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آمین. وہ کیا ہے؟ شفایہ عبادت, شفایہ کروسیڈ, شفایہ کیا کیا ہم کرتے ہیں. وہاں پہ ہم لوگ گیت گایا کرتے ہیں بڑے زور سے, تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. وہ سارے بیمار وہاں جمع ہوتے ہیں, 4-5 لوگ شفا لے جاتے ہیں, باقی ویسی بیماری کے ساتھ ہی لوٹ جاتے ہیں. اور کیا جو شفا لے جاتے ہیں وہ پھر دوبارہ بیمار نہیں ہوتے؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سیدھی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ وہ جسم کے اعتبار سے شفا پاتے تھے اور جسمانی زندگی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھ کر. کیوں لکھا ہے معجزے کیوں ہوتے تھے؟ تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. نشانیاں تھیں یہ کہ خدا زندہ ہے اور قادر مطلق ہے. معجزوں کے لیے یسوع مسیح نہیں تھا, وہ آپ کے کفارے کے لیے تھا کہ آپ کے موت کی جو سزا آپ کے اوپر ہے اس سے آپ کو چھڑا کر زندگی آپ کو دے دے. اگلی آیت پڑھیے گا. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. آمین. آگے پڑھتے نیچے آ جائیے. 5 نمبر کا جو ہے متی پہلا باب اس کی 21 آیت پر آ جائیے, پڑھ دیجیے گا اس کو. متی پہلا باب اس کی 21 آیت. متی پہلا باب. یہاں پر کہتا ہے کہ یسوع ہمارے گناہ کے جو مسئلے ہیں اس کا سولوشن ہے اور وہی یسوع مسیح ہے. یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی, پڑھیے گا. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, جس کا مطلب ہے نجات دہندہ. اور کیونکہ وہ ممسوح ہے, کیونکہ وہ مسح کیا ہوا ہے, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا. وہی مسیح ہے. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کیوں پیدا ہو رہا ہے. وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے. آگے پڑھیے جناب. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. سب کو معلوم ہے یہ آیت, آگے پڑھیے گا. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ, انڈر لائن کیجئے, ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. یسوع مسیح ہماری راست بازی ہے, ہمارے کام نہیں. اگلی آیت پڑھیے. کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. آمین. آمین. وہ یسوع جو پیدا ہوا اور وہ انسان جو بڑا ہوا انسانی اعتبار سے, جو داؤد کی نسل سے بھی کہلایا, اور پھر وہ صلیب پر جاتا ہے اور اپنا خون بہاتا ہے. کیا لکھا ہے؟ عہد کا خون. وہ عہد کا خون تھا. تو اس کی ایڑیوں کو کاٹے گا. جب سانپ کاٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ اور اندر کیا چھوڑتا ہے؟
जो मौत का सबब बन जाता है। यीशु मसीह के पैर जब सलीब पर थे तो वहां कितने सुराख नजर आते हैं हमें? 2। सांप के दांत कितने होते हैं? जब सांप काटता है तो उसके निशान कितने रहते हैं? समझ में आ रही है बात आपको? जो बतेरों के लिए गुनाह की मुआफी के वास्ते बहाया जाएगा। अगर यीशु के खून में शिफा ना होती, अगर हमारे गुनाह उस बख्शे ना जाते, तो वो हमारा मसीह हो सकता था कि नहीं? क्योंकि उसके खून के वसीला से हमारे गुनाह बख्शे गए। इसीलिए वो यीशु जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, सलीब पर जाकर जिसने जान दी, वो ही मसीह है। और यही खुशखबरी हमने दुनिया को देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला लेक्चर नंबर 9, हमारा तीसरा मसला। हमने अपने गुनाह को पहचान लिया। क्या गुनाह को पहचाना या नहीं? अभी तक हमने गुनाह को जाना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जाना, उसके दरमियान गुनाह के बीच हमारी जिंदगी कैसी उसको जाना, और मसीह हमारे लिए कफारा कैसे है उसको भी कलाम में से ही जाना। क्या मैंने कोई और आपको तमसीलें, स्टोरियां, कहानियां, कोरिया में ऐसे होता, अमेरिका में ऐसे तो बताया आपको? कोई थियोलॉजी नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, सिंपल वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। पहला मसला क्या है जी आपका? दूसरा मसला, तीसरा मसला। अगर आपको जिंदगी चाहिए तो आपको क्या चाहिए? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। आपको खुदा चाहिए। अगर आपको जिंदगी चाहिए तो आपको क्या चाहिए? क्योंकि वो ही आपका सिस्टम है। आपके सेल फोन बहुत सारे काम करते हैं आपके लिए, राइट? तस्वीरें खींचते हैं, फोन कॉल होती हैं, फेसबुक है, गूगल सर्च है, पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर है, सब कुछ करता है आपका फोन। लेकिन उसका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम है कि उसने बैटरी से चलना है। आप उसकी बैटरी निकाल दें तो वो किसी काम आएगा? आएगा। किसी का सर फाड़ने का काम आ सकता है, या पेपर वेट बना लें आप उसको। लेकिन क्या वो इस काम के लिए बनाया गया था? उसका असल काम उससे नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो उसके सिस्टम से बाहर है। क्योंकि वो इसके सिस्टम से, वो अपने सिस्टम में तभी जाएगा जब उसके अंदर बैटरी डाली जाएगी और वो चार्ज की जाएगी और उसको ऑन किया जाएगा, और तब वो आपकी मदद करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी मदद करे तो आपको उस सिस्टम में जाना जरूर है। और क्योंकि हम उससे बाहर हैं, और हम किस तरह बाहर हैं, किस तरह खुदा से जुदा हैं, आइए कलाम में से ही देख लेते हैं। पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। खुदा का सिस्टम क्या था? कि खुदा जिसने अपनी रूह आपके अंदर डाली, वो उस रूह से राब्ता रखे, वो उस रूह से कनेक्शन बनाए रखे। लेकिन जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा रहे, लेकिन रूह से कनेक्शन जुदा हो गया। तो हमारा सिस्टम क्या था कि खुदा की रूह, खुदा जो रूह है, उसका हमारी रूह के साथ कनेक्शन बना रहे। आगे पढ़ें। अब स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेशन फ्रॉम गॉड, अब खुदा से जुदा होने के बाद हमारी हालत क्या है उसके बारे में देखते हैं। पैदाइश 3:8। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। आमीन। आमीन। जैसे ही आप खुदा से जुदा हुए, क्योंकि रूह तो अब मुर्दा हो गई, अब रूह और रूह का कोई कनेक्शन नहीं था, तो जब रूह जिस्म के पास आई तो जिस्म ने क्या किया? अपने आप को छुपा दिया। क्योंकि वो अपने सिस्टम में थी नहीं, तो अपने सिस्टम से शर्मा गया। आज हमें कपड़े की जरूरत क्यों है? क्या आदम और हवा कपड़े पहना करते थे बाग एदन में? क्यों नहीं पहनते थे जी? नंगे थे, शर्म आनी चाहिए थी उनको। क्यों? क्योंकि रूह के एतबार से जिंदा थे, रूह की आंखों से देखते थे, और रूह की आंखें पाक थी।
वहां शर्म की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो जिस्मानी तौर से जिंदा हुए, जिस्म के एतबार से, जब जिस्मानी आंखों से देखा तो हमें क्या सिवाय बदी के और कुछ नहीं आया नजर। हम लोग जब गुजरते हैं राह से, खूबसूरत लोग नजर आते हैं तो हमारी गर्दन ऑटोमेटिकली घूम जाती है, ऐसे ही ना? क्यों? क्योंकि इन आंखों से देख रहे हैं। बड़े बड़े पादरियों की हम वो देते हैं मिसालें कि कौन, उस पास्टर का नाम नहीं याद, जो एलिवेटर में कहता है कि जी मैं एलिवेटर में अगर मेरे साथ कोई जवान लड़की आए तो मैं अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से काबू करता हूँ। बड़ा खादिम है वो, क्योंकि मुझे रूहें बचानी है सर। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब एलिवेटर में हूं, मेरे साथ 100 लड़कियां भी आ जाएं या 100 लोग हों, मुझे कोई परवाह नहीं उन्होंने क्या पहना है, कैसा रंग है, क्या कुछ कर रहे हैं। और अगर कभी कोई ऐसी चीज मेरे साथ होती भी है तो उसी वक्त खुदा यीशु मसीह मुझे हाथ से पकड़ के ठाकरा कर देता। ये हमारी हालत होनी चाहिए, क्योंकि जब रूह के एतबार से जिंदा होंगे तो आपकी आंखें भी पाक होंगी। क्योंकि हवा की ख्वाहिश कहां से जन्म हुआ था? देखा। आंखों से जो देखा तो उसकी ख्वाहिश हुई, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कहां से देख के ख्वाहिश पैदा होती है जी? जिस्मानी आंखों से देख के। जब रूह से जिंदा होंगे तो क्या मुझे परवाह है इन चीजों की? क्योंकि ये सब चीजें तो वैसे ही मेरे कदमों में है। बिशप साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि उन्होंने मेरी खिदमत में बहुत अच्छा शेयर डाला क्वेटा में। मैं तो सिर्फ वहां पहुंचा था ना ट्रेन से, पहले एक होंडा सिविक आती है मुझे लेके जाती है और मेरी जगह पर पहुंचाती है। उसके बाद मैं बिशप साहब से मिलता हूं, ये अपनी पराडो मुझे दे देते हैं और चाबी छोड़ जाते हैं कि लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। क्यों? अब मेरी ख्वाहिश नहीं है, खुदा को पता है कि उसके मंसूबे के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली मेरी राह में आती रहेगी। किस चीज की ख्वाहिश करूं मैं? अब जहाज में बैठना था, जहां उसने जहाज में लेके जाना लेके जाता है, पैदल जाना है जहां मुझे जाना है वो लेके जाता है, गाड़ियां मेरे लिए अवेलेबल कर देता है, लोग अवेलेबल कर देता है, खाना मुझे खिला रहा है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या ख्वाहिश करूं? मुझे आप लोगों से किस चीज का लालच है सिवाय इसके कि काश के एक रूह बचा सकूं। अगर आज भी आप यहां से खाली चले जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा नुकसान हुआ, इसका मतलब यह है कि अफसोस है तुम पर, क्योंकि कुछ रूहें सजा के लिए मुकर्रर की गई हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कोई डॉक्ट्रिन नहीं बयान की है, मैंने अभी तक सिर्फ कलाम ही बयान कर रहा हूं। और अगर हम कलाम को सुनकर भी अपनी आंखों को नहीं खोल पाए तो यहूदियों को यीशु मसीह क्या कहते हैं? अफसोस है तुम पर। वो रासपास थे ना यहूदी, सारे फरीसी, जिनके लिए यीशु मसीह कहता है अफसोस है तुम पर। अगली आयत पढ़िए। अब जरा जल्दी चलेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में इमरान भाई आएंगे और हमें कमरे से निकाल देंगे, तो हम जल्दी जल्दी इसको पूरा करते हैं। क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे, शिकस्ता हौज जिनमें पानी ठहर नहीं सकता। इसमें नहीं कर, लिख लीजिए, इसको सर्कल करें जी। 2 बुराइयां। खुदा क्या कहता है कि तुमने क्या किया है? मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराइयां की हैं। क्या लिखा है? उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। यिर्मयाह नबी लिख रहा है। क्या उस वक्त यीशु मसीह पैदा हो चुके थे? क्या उस वक्त तक इसराइलियों ने यीशु का मसीह होना इनकार कर चुके थे? नहीं, अभी ये फ्यूचर में होने वाली बातें थी जो यिर्मयाह नबी पहले ही लिख रहा है। क्या कह रहा है? मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। पहला कि उन्होंने आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे। क्या? आबे हयात को तर्क करके अपनी ही रास्तबाजी साबित करने के चक्कर में लग गए अपने कामों से। सैक्रामेंट,
कितने? पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग की जाती है, तो क्या हम उनको पूरा करते हैं? फिर भी सिर्फ 7 को भी नहीं करते। अगर वही हकीकत होती तो क्या हम वो कर पाते हैं? वो भी नहीं कर पाते। अपनी रास्तबाजी साबित करने की कोशिश ना करें। रूह से बेदार हो जाएं, नए सिरे से पैदा हो जाएं, रूह का काम करें, रूहों को बचाएं, ये ही आपकी कामिल इबादत है। आब हयात को तर्क करने का मतलब है नाफरमानी है। जो उनके पास आया और उसने कहा मुझ में से लो, लेकिन वो कहता है हम ना लेंगे। इसका हवाला भी मैं आपको दे देता हूं। यिर्मयाह 6 बाब उसकी 16वीं आयत है, पढ़िए बाइबल में से। कोई भाई बुलंद आवाज अगर है तो पढ़ो, नहीं तो कोई भी पढ़ दे जो पहले ढूंढ ले। यिर्मयाह 6 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़िएगा। फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। और उन्होंने कहा, आगे पढ़ दें। और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा नरसिंगे की आवाज सुनो, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। आमीन। समझ आ गई सर जी? आसान है। कलाम से कलाम साबित होता है, कलाम खुद बयान कर रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिल पे कलाम लिखा जा रहा है, और वही कलाम आज मैं कोशिश करूं कि आपके दिलों पर लिखा जाए। अगली आयत देखें, यिर्मयाह 3 उसकी 20वीं आयत देखिएगा। लेकिन खुदावंद फरमाता है, ऐ इस्राएल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शोहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। आमीन। खुदा से जुदा होने का मतलब क्या है? खुदा से बेवफाई। अगर आपकी बीवी या आपका शौहर आपसे बेवफाई करे और रात छोड़ जाए, तो क्या आप उसको दोबारा अपनाएंगे? शायद किसी रेयर केस में कोई अपनाएगा, और वो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, राइट? ऐसे नहीं कबूल करने लगे। हम जो गुनाहगार हैं, हम उस बेवफा बीवी की मानद हैं। जो कुछ आप सोच सकते हैं ऐसी औरत के लिए जो आपके घर में, या जो कुछ आप सोच सकती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए कि अगर ऐसा हो तो आप क्या कुछ करेंगे उसके साथ, आप वही समझ लेंगे खुदा आपके साथ करेगा, और वो भी बुरा ही है। अगली आयत पढ़िए। फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर उड़े हैं? वो मुकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। वो मकर से लिपटे रहते हैं। मकर क्या चीज है जी? जी मकर क्या है? अगर कोई दानिशमंद यहां पे हैं जो बता सके मकर लफ्ज का मतलब। फरेब। कह रहा है वो फरेब से लिपटे रहते हैं, धोखे से लिपटे रहते हैं, सच्चाई से नहीं। कह रहा है और वापस आने से इनकार करते हैं। बहुत सारे लोगों, ये चौथा हमारा सेमिनार है, 5वां सेमिनार है, चौथा है ना? मरी वाला भी वैसे बहुत सारे सेमिनार के, लेकिन मरी में शायद चौथा सेमिनार है। और बहुत सारे लोगों को यह कलाम दिया गया है। बहुत सारे लोग मकर से ही लिपटे रहे, और कुछ ही क्या लिखा है, वापस आए। वो अब भी इनकार कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है, खुदा मुंसिफ है, मैं नहीं। अगली आयत। खताकार ग्रोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। एक सेकंड सर, ये आयत ठीक है, सर चेक कीजिए अपनी बाइबल में।
یسایہ پہلا باب اس کی 4 آیت. ہاں یہ ٹھیک ہے. نہیں میرا خیال ہے حوالہ ہی غلط ہے اوپر والا. People whose guilt is great, a brood of evil doer. نہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. خطا کار گروہ, بد کرداروں سے لدی ہوئی قوم, بد کرداروں کی نسل, مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا, آب حیات کے چشمے کو ترک کیا, اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ پرکشتہ ہو گئے. گمراہ کون کرتا ہے؟ اور جو کوئی اس کی فرزندی میں ہے, جو کوئی اس کے قبضہ میں ہے, صرف وہی گمراہ ہو سکتا ہے. جو اس کے قبضہ سے باہر آ گیا, کیا وہ گمراہ رہے گا؟ تو آج وقت ہے کہ آپ اس گمراہی سے باہر آ جائیں اور آب حیات کے چشمے کو پی لیں, اور پھر اس کو حقیر نہ جانیں. وہ آپ کی سوچ سے بڑا خدا ہے. آپ کی سوچ سے بڑا, بتا دیں ساتھ والے کو, وہ ہماری سوچ سے بڑا خدا ہے. اگلی آیت پڑھیے, یسایہ 48 آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں تو نے نہ جانا نہ سنا جانا, قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے, کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے. ہاں تو نے نہ سنا نہ جانا, ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے. قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے, اس لیے نہ سنا اور نہ جانا, اور ہی طرح کی خوشخبری سن کر اس کے تابع ہو گئے. کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم, کیا ہے یہ, رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے. رحم کیا ہے جی؟ ماں کے پیٹ سے ہی خطا کار کہلاتا ہے. اگلی آیت پڑھیے. اب خدا سے جدا ہونے کے جو نتائج ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ کیا ہیں, کانسیکوینسز کیا ہیں؟ آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پہ جی؟ پیدائش 3 باب 24 آیت کیا کہہ رہی ہے جی؟ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کی مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. آمین. آپ کو نہ صرف خدا سے جدا ہوا, آپ نہ صرف جدا ہوئے بلکہ اس کی حضوری سے نکال دیے گئے, اور نکالنے کی وجہ سے کیا کیا اس نے؟ اس کے بعد آپ کے واپس آنے کی راہ بھی بند کر دی کہ اب آپ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. 2 موقع ہیں کلام مقدس میں, 2 موقع ہیں, ایک وہ جو شریعت کا, ایک وہ جو فضل کا. یا تو آپ شریعت کو پورا کریں تو خدا آپ پر رحم کرے, 613 حکم پورے کریں پر رحم کرے, یا پھر مائک دیجیے گا دوسرا, یا پھر فضل سے بچ جائیں. لیکن جو فضل سے بچتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں؟ دیکھیں دونوں طریقے ہیں. جسمانی اعتبار سے جینا, اگر جسمانی اعتبار سے جینا چاہتے ہیں اور خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو شریعت کو پورا کریں, ٹھیک ہے. ایک ہے فضل, یعنی کہ روحانی اعتبار سے جینا, کہ یسوع مسیح پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر لیں اور اس کی راست بازی کو اپنی راست بازی سمجھ لیں, اور جو کام اس نے ہمیں دیا ہے اس کو کریں تو خدا سے مل جائیں. 2 طریقے ہیں اور بہت آسان ہے. آپ چوز کریں آپ کو کیا چاہیے. میں 613 حکم نہیں کر سکتا, اس جسم میں تو میں کر ہی نہیں سکتا, یہ کمزور ہے, یہ گناہگار ہے, لیکن روح قوت پاتی ہے اور فضل کے سبب سے بلایا گیا ہوں تو خدا ضرور ہی رحم کرے گا. اگلی آیت پڑھیے گا. کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے.
आमीन बोला कीजिए। हालांकि लिखा बड़ा सख्त कलाम है, पर फिर भी आमीन बोलिए। थोड़ा जा मुश्किल जा होता है, पर खुदा दा कलाम है जो सच्चाई पे मुबनी है और सिर्फ सच्चाई बयान करता है। क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, किसके सबब से? अंडरलाइन कर दें जी, नादानी के सबब से जो उनमें है, और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से। आदम और हवा की कोई इंटेंशन नहीं थी खुदा की नाफरमानी करना, लेकिन वो जो तीसरी कुव्वत आई जो उनके दरमियान पहुंची और जिसने कहा क्या वाकई, उसके सबब से इसीलिए इंसान क्या ठहराया गया? नादान। इंसान क्या ठहराया गया? और लिखा है नादानी के सबब से जो उनमें है। जब मैं मां के पेट से ही गुनाहगार हूं, इसका मतलब मैं पैदाइशी नादान हूं, पर मैं दुनिया को क्या शो कर रहा हूं? मेरे से बड़ा स्मार्ट आदमी कोई नहीं है, यही शो कर रहा हूं ना दुनिया को। आगे चलते हैं, टाइम क्योंकि कम है, सॉरी, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन एनीवेज खाने का टाइम हो रहा है। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया है। आमीन। यिर्मयाह 17वें बाब में भी यही कह रहा है कि अगर आप खुदा से जुदा हो गए हैं तो आप कहां जाके मिल जाएंगे? खाक में मिल जाएंगे। कौन कौन खाक में मिलना चाहता है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कौन कौन अदालत को देखना चाहता है, अदालत में जाना चाहता है? जरा हाथ खड़ा करें। 2 दिन से ठीक हो गए हो, एक भी नहीं? क्योंकि हम तो कलाम यही सुनाते हैं ना कि अदालत के रोज तुम पर सजा का हुक्म होगा। अरे जो रास्तबाज है उसका अदालत से क्या वास्ता? जिसके अंदर कोई गुनाह ही बाकी ना रहा तो वो अदालत में क्यों कर जाएगा? वेख्या जी, ए भी आई है। Praise the Lord. Okay. ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। क्योंकि तुझको तर्क करने वाले मतलब खुदा को तर्क करने वाले, मुझको तर्क करने वाले का मतलब यिर्मयाह अपनी बात कर रहा है जो खुदा की तरफ से भेजा है, खुदा का काम कर रहा है। मुझको तर्क करने वाले भी, मैं खुर्रम जो खुदावंद का शागिर्द है, जो जगह जगह मुनादी की कोशिश कर रहा है, वो कलाम जो मैं आपके पास लेकर आया हूं, अगर जो कलाम मेरे वसीला से आप तक पहुंच रहा है, अगर आप उसको तर्क कर देंगे तो आगे लिखा है कि क्या होगा। अगली आयत। तेरी ही शरारत तेरी तादेब करेगी और तेरी बरगश्तगी तुझको सजा देगी। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख और जान ले कि ये बुरा और बेनहायत बेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ नहीं। आमीन। अंडरलाइन कर दें जनाब। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, यहां से शुरू करें और आखिर तक अंडरलाइन कर लें। बेजा काम को सर्कल करें, बेजा काम को सर्कल करें कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क करना, इसको सर्कल करें, और खुदा का खौफ ना होना, उसको तर्क करें। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे किस चीज का डर है? खुदा के उस अजाब का जो अगर मैं खुदा में नहीं हूं तो मुझ पर आने को है, और मुझे उसका डर है। मुझे उस अजाब का डर है, खुदा का नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है, प्यार का खुदा है, जिंदगी है, वो हमारा बाप है। अगली आयत पढ़िए, यिर्मयाह 15:6। खुदावंद फरमाता है, तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया।
میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا. سوچئے تھوڑی دیر آپ اپنے بارے میں, اپنی خدمتوں کے بارے میں جو آپ نے آج تک کی, اپنی کلیسیوں کے بارے میں جن کا جو حال آج آپ کے پاس ہے. کچھ اور ہی خوشخبری کے تابع ہو کے کچھ اور ہی کام کرتے رہے. خدا کہتا ہے میں تو ترس بھی کھاتے کھاتے تھک گیا, اب تو بس کرو. آگے پڑھیے. پس خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی ہے اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا. ہم آمین. جو آج اپنے مسئلوں میں پھنسے ہیں, ہم اسی لیے پھنسے ہیں کہ ہم خدا سے جدا ہو گئے ہیں. ہم خدا کے آگے روتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آتا, کیونکہ ہمیں خدا کیا کہتا ہے, اپنی بد کرداری کی سزا اٹھانا ضرور ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے آج دعا کی ہے کسی مسئلے کے لیے, وہ حل ہو گیا ہے, تو واہ جی واہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو کل جو دوسرا مسئلہ آیا تب کیا ہو, خدا دور ہو گیا آپ سے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو مسئلہ نہیں آنا چاہیے, اور اگر پھر بھی آ جاتا ہے تو خدا کے جلال کے لیے. میرے لیے اس روئے زمین پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. جب تک میں زمین پر زندہ ہوں, اس جسم کی حالت میں زندہ ہوں, میری بیماری, میری مفلسی, میرا کچھ بھی ایشو ہے, وہ میرے لیے پرابلم نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں اسی کی بات کر رہا ہوں سر. اس کے ٹھیک ہونے سے خدا کا جلال ظاہر ہوا تھا. اگلی آیت پڑھیے. میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا, اس لیے تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو, اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے, اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. آمین. چونکہ تو نے معرفت کو رد کر دیا, چونکہ تو نے معرفت کو, کیا لکھا ہے یہاں پہ یار, میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, چونکہ تو نے معرفت کو رد, کچھ غلطی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, معرفت کو رد کروں گا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو, تاکہ تو میرے حضور کاہن, تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو. لیکن ہم تو سب کاہن بننا چاہتے ہیں. لیکن اگر معرفت فرما برداری کو ہی رد کر دیں گے تو کیسے کاہن ہو سکیں گے؟ خدا نہیں چاہتا کہ تو کاہن ہو اگر تو فرما بردار نہیں ہے. تو مجھے پاسٹرز اور لیڈرز ملتے ہیں, کہتے ہیں جی چھوڑیں, میں نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ اسی سے زمرے میں آ جاتی ہے, رہنے دیجیے. اگلی آیت پڑھیے گا. احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں, وہ بگڑ گئے, انہوں نے نفرت انگیز بدی کی, کوئی نیکوکار نہیں. خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند, کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں. وہ سب کے سب پھر گئے, وہ باہم نجس ہو گئے, کیونکہ نیکوکار نہیں, ایک بھی نہیں. آمین. سر جی میں اپنے ایک شخص ہاں, میں بڑی نیکیاں کرنا, میں غریباں نو کھانا کھوانا, میں چرچ ہدیہ دا پانا, میں تے کارپٹ ہی پانا ہوتے, میں تے پردے بھی لائے نے ہوتے, پکھے بھی لائے نے ہوتے, میں نیکی دے بڑے کم کرنا. وہ کیا کہہ رہا ہے کلام, کہ خدا نے جب زمین پر نظر کی اور ڈھونڈا کہ کاش کوئی ایک ہے, ایک بھی نہیں. امیر آدمی یسوع کے پاس, نہیں امیر آدمی سوری نکودیمس یسوع کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اے نیک استاد. یسوع مسیح کہتا ہے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, زمین پر ایک بھی نیک نہیں. تو اسی اپنی نیکی نو ثابت کرنے تو باز ہی نہیں آتے. احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کوئی خدا نہیں, وہ بگڑ گئے, انہوں نے نفرت انگیز بدی کی, کوئی نیکوکار نہیں. خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کوئی دانشمند, کوئی دانشمند, کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ کہا نا, کیا کوئی دانشمند ہوگا؟
ایمان دانشمندوں کے لیے ہے، احمق کے لیے نہیں۔ روح سے پیدا ہونا دانشمندوں کے لیے ہے، احمق کے لیے نہیں۔ روح کے کام کرنا دانشمندوں کے لیے ہے، احمق کے لیے نہیں۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ صلیب کے اس پیغام کو، صلیب کا یہ پیغام دنیا کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ہمارے لیے ہلاک ہونے والوں کے لیے نظر میں کے نزدیک، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے، ہم دانشمندوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہر ایک چیز اس میں ہے، کنیکشن، بیان، طریقہ، سب اس کے اندر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں یسوع جس نے ہمارا خدا سے جدائی کا مسئلہ حل کیا وہ ہی مسیح ہے۔ یسوع جس نے ہمارا کون سا خدا سے جدائی کا مسئلہ حل کیا وہ ہی، دیکھتے ہیں کیا کہتے جی ہے۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی توفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ ہمارے نوجوان خدا پہ فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ہم انہی نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان چوری کے کیس میں جیل جاتے ہیں، شراب بیچتے ہوئے جاتے ہیں، اور دیگر الزامات میں جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی بے عزتی کس کی ہے؟ خدا کی کہ ہماری؟ اس مسیح کی جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ احمق ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا آنا ضرور تھا کہ وہ راست بازی جو ہم نہیں پوری کر پا رہے وہ پوری کر کر ہمیں راست باز ٹھہرا دے۔ اگلی آیت پڑھیے گا۔ آج بہت زیادہ ریڈنگ ہو گئی، مجھے پتا آپ لوگ تھک گئے ہیں، بس 5 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ ہاللیلویہ۔ زندگی کے 37 سال میں خدا سے دور تھا، چرچ ممبر تھا، کرسمس ایسٹر میں ڈیکوریشن کرنا، ڈراموں میں حصہ لینا، اور سنڈے اسکول اٹینڈ کرنا، اور وہ ہمارے چرچ کی سینٹ فلپس چرچ حیدرآباد سے کوئی ہے پادری یہاں پہ؟ ہے نا؟ سینٹ فلپس کی چھت دیکھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ کوئی ہے 20 فٹ اونچی، یہ شاید اس سے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوگی۔ وہاں اوپر بڑے والے سٹول پہ جا کر پنکھے صاف کرتا تھا میں کہ خدا کو پسند آؤں گا۔ یہ 37 سال کی لائف تھی میری، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ سوائے یسوع کے، اس کے مسیح ہونے کے، راست بازی تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اسی کے وسیلہ سے میں خدا کے نزدیک آ گیا ہوں۔ اگلی آیت پڑھیے گا۔ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ آمین۔ اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، سب کچھ کلیئر ہے۔ آخری حوالہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ آمین۔ راہ، حق اور زندگی، آپ کے کتنے مسائل ہیں جناب؟ 3۔ کیا کیا ہیں؟ پہلا ابلیس، گناہ، خدا سے دوری، خدا سے جدائی۔
यहां पर क्या कह रहा है? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। इब्लीस जो मौत है, मैं जिंदगी हूं। गुनाह जिसमें कुछ सच्चाई नहीं, मैं सच्चाई हूं। वो राह जिसे तुम, जो खुदा से तुमको मिला सकती है, वो भी मैं हूं। आपके तीनों मसलों का हल इस एक आयत में भी मौजूद है। हम तो पता नहीं पढ़ते रहे, लेकिन समझ के पता नहीं क्या चलते रहे। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी कैलेंडरों पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत है खुदा, और बहुत अजीम मंसूबे के तहत वो इस कुल कायनात को संभाल रहा है। और वो अजीम मंसूबा क्या है पता है? कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। इसी के साथ आंखों को बंद करें और दुआ करें। दुआ कीजिएगा। कुदूस मेहरबान खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन गहरे बातों के लिए जो तेरे बंदा की वसादत से प्यारे खुदावन हम तक पहुंची। प्यारे खुदावन, हम अपने लिए बहुत से मसाइल ज़िंदगी में लिए फिरते थे, लेकिन हकीकी तौर पर जब हम रूहानी तौर पर सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही मसले हैं जिनको प्यारे खुदावंद आज हमने सीखा है। सबसे बड़ा मसला जो है वो इब्लीस का गुनाह लाना और फिर तुझसे जुदा करना ठहरा। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा खुदा के साथ मिलाप करें तो ज़रूरी है कि हम उस इवज़ी को जो यस्सु मसीह है उसे पहन लें और तेरे साथ दोबारा से मिलाप कर सकें। कुदूस मेहरबान खुदावन, इन तमाम जानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इन तमाम अरवाह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। बख्श दे के प्यारे खुदावंद इन नाकस सोचों के साथ इस कलाम को ना लें, बल्कि रूहानी तौर पर सोचते हुए प्यारे खुदावंद बातों को सीखें और इम्प्लीमेंट तौर पर प्यारे खुदावंद आगे सिखा सकें, ताकि तेरी खुशखबरी का पैगाम जो है वो सारी दुनिया तक पहुँचे और तेरा आना जो है वो जल्द हो। यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आप सब खुश हैं इस खूबसूरत